Hello everyone. Today I have come up with another interesting and important topic, and the condition which I'm going to discuss today is very much similar to sciatica. The patients who frequently have buttock pain, hip pain, they come with an assumption that they have sciatica. The condition which I'm going to discuss today is very much similar in terms of symptoms. I'll be discussing how it is differentiated from it, how the pain is different from sciatica pain, and who are all prone to it. And at the end of video, I'll be telling you some solutions so that you can help yourself to get rid of this pain. And if you have buttock pain, hip pain, do watch this video till end and find out, do you exactly have sciatica or it is something else? So let's get started. When the patients feel pain in buttock area, hip area and nearby thigh area, their condition is being frequently misdiagnosed as sciatica. But the true sciatica pain, it starts from lower back area and it runs down in a radiating pattern, and sometimes it travels down till sole of the foot. The condition which I am talking about, which is mimicking the sciatica pain, is piriformis syndrome. Now this piriformis syndrome pain is very much localized in buttock area and hip area. I'll be telling you in brief what exactly piriformis syndrome is and how much similar it is to sciatica pain. Now to understand piriformis syndrome, I want you to understand about the muscle which is actually causing the pain, that is piriformis muscle. This muscle is very deep and it's nearby the buttock area. और जब ये मसल टाइट होना स्टार्ट होती है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, सिटिंग कर रहे हो, तो ये मसल बहुत ज़्यादा देर तक उसी पोजीशन में रहती है और टाइट होने के कारण इसके नीचे जो नर्व होती है विच इज़ sciatic नर्व, ये इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और जब आप बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग पोस्चर में हो या ऑकवर्ड पोस्चर में हो, तो स्ट्रेस के कारण पेन जो है नियर बाय एरियाज में, बटक एरिया में, हिप एरिया में, थाई एरिया में रेफर्ड हो जाता है। बट दिस डजंट हैपन्स इन sciatica. sciatica का जो पेन है वो L3, L4, L5, S1 ये नर्व रूट से होता हुआ, पीछे बैक ऑफ द थाई से होता हुआ, काफ से लेकर समटाइम्स इट ट्रेवल्स डाउन टू सोल ऑफ द फुट ऑल्सो। sciatica का जो पेन है वो रेडिएटिंग पैटर्न में होता है एंड द पेशेंट्स दे फील सिम्टम्स लाइक रेडिएटिंग पैटर्न्स के जो सिम्टम्स होते हैं, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये उनको सिम्टम्स फील होते हैं। देर आर मैनी कॉजेज ऑफ sciatica बट वन ऑफ द कॉमन कॉज इज डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज के कारण नर्व रूट, किसी भी नर्व रूट लेवल पे कंप्रेशन आ सकता है, जिसके कारण जो sciatic नर्व है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। sciatica के बारे में मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियोस में डिटेल में बताया है, इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सो लिंक आई विल बी गिविंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन श्योरली चेक दैट टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट sciatica. सो समराइजिंग, piriformis syndrome का जो पेन होता है that is very much localized to buttock area and hip area and it's sometimes referred to thigh area also. but जो sciatica का पेन होता है वो आपका radiating pattern में होता है and it is nearby the lower back area and it travels down to one of the leg. Now this is the piriformis muscle और ये दो मसल कैसे बॉडी में ओब्लिकली ओरिएंटेड होता है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एंड इसका मेन फंक्शन होता है, ये जो लेग की बोन होती है उसको बाहर की तरफ रोटेट करती है। सो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप इज इट्स मेन फंक्शन। हु आर ऑल प्रोन टू piriformis syndrome? द पीपल हु डू अ लॉट ऑफ रनिंग एंड जो बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, कॉर्पोरेट जॉब जो वर्कर्स होते हैं उनको piriformis syndrome के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डांसर्स and the people who keep purse in back pockets of their pants, they are also prone to piriformis syndrome. And also if you had an intragluteal injection sometime, so it is likely to develop tightness in that nearby area
and it ends up in piriformis syndrome. जब पिरिफॉर्मिस मसल टाइट होना स्टार्ट होती है तो इसमें टॉट बैंड्स बन जाते हैं और ये टॉट बैंड्स लेटर ऑन स्टेज में ट्रिगर पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे डिफरेंट स्पॉट्स पे जो है ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं। ट्रिगर पॉइंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? ये नोड्यूल होते हैं जो कि हाइपर इरिटेबल स्पॉट होते हैं। यहाँ पे हाथ लगाते ही आपको मसल बेली के आसपास दर्द होता है और इससे जो पेन होता है वो काफ़ी अनबेरेबल होता है। एंड ये ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होती है और न्यूट्रिशन सप्लाई भी कम होती है मसल बेली में। और कई बार ये ट्रिगर पॉइंट्स बनने के कारण मसल बेली में, पेरिफॉर्मिस मसल में पेशेंट की जो वॉकिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है और पेनफुल वॉकिंग के कारण वो एंटाल्जिक गेट में कन्वर्ट हो जाती है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है शियाटिक पेन से, क्योंकि पिरिफॉर्मिस मसल के ठीक नीचे शियाटिक नर्व होती है और अलग अलग लोगों में ये शियाटिक नर्व जो है वो डिफरेंटली प्लेस्ड होती है। कई बार ये पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से आती है, कई बार बीच में से आती है और कुछ लोगों में ये ऊपर से भी आती है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल में जो शियाटिक नर्व होती है वो पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से ही आती है और पिरिफॉर्मिस मसल के टाइटनेस के कारण जब ये नर्व, शियाटिक नर्व जो है इरिटेट होना स्टार्ट होती है तो लेटर ऑन स्टेजेस में कई बार ये नर्व को कंप्रेस भी कर देती है और पेशेंट्स दे फील सम सेंसेशंस ऑफ पिन्स एंड निडल्स एंड लोअर बैक एरिया में उनको पेन आने लगता है और नमनेस और टिंगलिंग की भी सेंसेशन आने लगती है। Now what you can do at home to help yourself? सबसे पहले जो भी एक्टिविटीज़ जो कि पेन को एग्रीवेट कर रही हैं, सपोज आप बहुत देर तक रनिंग कर रहे हो, बहुत देर तक आप वॉकिंग कर रहे हो या सिटिंग पोजीशन में आप बहुत देर तक बैठे हो, तो उन एक्टिविटीज़ को सबको अवॉइड करना है जो कि आपके जो सिम्टम्स हैं उनको एग्रीवेट कर रही है। सेकेंडली यू कैन डू दिस स्ट्रेचिंग। चेयर पे बैठ के आप एक नी को फोल्ड करेंगे और आगे की तरफ लीन करेंगे और जिससे कि आपकी जो फोल्ड की हुई जो लेग है वहाँ पे बटक की साइड पे आपको स्ट्रेच फील होगा। साइड से आप देख सकते हैं कैसे आपको लीन फॉरवर्ड करना है। आप यही स्ट्रेचिंग जो है सुपाइन लाइन में भी कर सकते हैं। सीधा लेटकर आप एक पैर को फोल्ड करेंगे एंड दिस इज हाउ यू हैव टू पुल द लेग टुवर्ड्स योरसेल्फ। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको भी बटक पेन, हिप पेन या थाई पेन है, so you can correlate with the symptoms and find out whether you have piriformis syndrome और sciatica pain. sciatica pain के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए you can see other videos जिसमें उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है and you can watch those video. I'll be giving you the links in description box. Thank you so much for watching.